انہوں نے اپنی زندگی کا 31 سال جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دی. فیملی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے, بہت پریشان ہوتی ہے. ہماری ضمانتیں کنفرم ہونے کے باوجود پولیس ابھی تک جیسے ہی کہیں بھی احتجاج کا اعلان ہوتا ہے پولیس ہمارے گھروں پہ ریڈ کرتی ہے. آپ کی اپنی فیملی نہیں, آپ کے ارد گرد کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے. مولانا صاحب اس دفعہ حق اور سچ کے ساتھ جائیں گے. مولانا نے اپنے ساتھ بلاول کو کھڑا کیا ہے, مولانا صاحب بلاول کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. پی ٹی آئی کی کیا سچویشن ہے اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ بالکل خان صاحب کے نظریے کے لوگ اور بالکل ایماندار آنیسٹ لوگ آئے تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے کہ دن بدن مضبوط ہو رہی ہے. کہ وہ حماد اظہر کو کہتے ہیں کہ آپ موقع سے بھاگ جاتے ہیں, وہاں سے علی میر بھگنڈا کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی تو موقع پہ موجود نہیں تھے. ہو سکتا ہے دونوں کی رائے مختلف ہو, آصف زرداری یا ادھر سے نواز شریف نے کہہ دیا وہی آڈر جاتا, لیکن ہماری واحد پارٹی ہے جس میں نیچے سے ورکر کو بھی بولنے کا موقع ملتا ہے. خان صاحب امید ہے کہ اسی سال باہر آ جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ خان صاحب سب سے پہلے اپنے ورکرز کو اپریشیٹ کریں گے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی اتنا ظلم نہیں کیا گیا. السلام ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب زمانہ, میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفصہ ملک. آج ہم ان سے بات کریں, یہ پی ٹی آئی کے پکے جس کو کہتے ہیں سپورٹر ہیں, وہ ہے 31 سال انہوں نے اپنی زندگی کا 31 سال جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دی اور اس میں بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی. خان صاحب کے ساتھ یہ فنڈ ریزنگ بھی کی شوکت خانم کے لیے. جانتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کی کیا سچویشن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف شکور صاحب, آپ کا جو نام ہے, لیکن باقی سے سیاستدان جو آئے ہیں خان صاحب کے بعد میں آئے اور پارٹی میں آ کے انہوں نے آ کے عہدے لیے, آپ کو کیوں نہیں عہدہ ملا؟ ہم ورکر تھے, ہم پارٹی کو آرگنائزیشن بنانے والوں میں شامل تھا شروع سے. 93 سے خان صاحب کے ساتھ فنڈ ریزنگ شروع کی تھی. اس کے بعد 2006 میں پاکستان آ گیا, تب سے گراس روٹ لیول پہ ہم ورکنگ کرتے رہے ہیں. پرانی جتنی پی ٹی آئی کی پرانی فاؤنڈرز ہیں وہ سارے مجھے بائی نیم بائی فیس جانتے ہیں اور گاہے بگاہے خان صاحب سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی, کبھی شوکت خانم کے فنڈ کے, کبھی نمل یونیورسٹی کے. تو ان کو میں اپنی پرانی تصاویر بھی دکھاتا تھا, بڑے خوش ہوتے تھے. اور میں نے فلیٹی میں ایک فنکشن تھا 2014 میں ہوا, تو تب میں نے ان کو کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنا کے چھوڑنا, اس سے پہلے ہم پیچھے نہیں ہٹنا. تو میں الحمدللہ پارٹی کا جو پی ٹی آئی کا لاہور بزنس فورم تھا اس میں بھی میں لاہور کا کوآرڈینیٹر رہا ہوں, اور انصاف کلچر سپورٹس ونگ کا اس میں بھی میں فنانس سیکٹری رہا ہوں پورے لاہور کا. اور اس کے بعد ابھی لاسٹ ٹائم بھی یہ میرے پاس پی ٹی آئی ٹریڈ ونگ گلبرگ کا ہوتا تھا ایز اے پریزیڈنٹ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ پہلی پارٹی جو عمران خان نے جب سٹارٹ کیا تھا پی ٹی آئی میں, اس پارٹی میں اور آج کی پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے, پرانی اور نئی پی ٹی آئی میں؟ پرانی پی ٹی آئی نہیں, جو اس ٹائم جو بنیاد اس چیز ہوتی ہے, ہر بلڈنگ کی اگر بنیاد مضبوط ہو وہ تو دیر پا ہوتی ہے. اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ بالکل خان صاحب کے نظریے کے لوگ اور بالکل ایماندار آنیسٹ لوگ آئے تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے, اور وہ اتنی بنیاد مضبوط رکھی ہے کہ اس کے بعد ہزاروں لوگ آئے ہزاروں گئے, لیکن الحمدللہ پارٹی اپنے فاؤنڈیشن پہ کھڑی ہے اور کوئی فرق نہیں ہو پڑا, بلکہ دن بدن مضبوط ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے مضبوط ہو رہی ہے, لیکن ابھی علی میر بھگنڈا کی اور جو آپ ہیں حماد اظہر صاحب کی بہت تو میں بھی ہوئی ہے, نظر آیا, جہاں کہ وہ کہہ رہے ہیں جلسے کی اجازت چاہیے, وہ کہتے نہیں دیں گے کیونکہ آپ تو اسلام آباد سے بھاگ جاتے ہیں. ایسی باتیں سامنے آ رہی کہ وہ حماد اظہر کو کہتے ہیں کہ آپ موقع سے بھاگ جاتے ہیں, وہاں سے علی میر بھگنڈا کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی تو موقع پہ موجود نہیں تھے, ورکرز کو آپ بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں. ایسے کتنی سچائی ہے ان دونوں کی باتوں میں؟ جمہوری پارٹی ہے اور جمہوریت میں ہر کسی کو اپنی رائے کا دینے کا اظہار ہوتا ہے. آپ کو دیکھیں گے نون لیگ پیپلز پارٹی میں جو آصف زرداری یا ادھر سے نواز شریف نے کہہ دیا وہی آڈر جاتا ہے, لیکن ہماری واحد پارٹی ہے جس میں نیچے سے ورکر کو بھی بولنے کا موقع ملتا ہے. اگر ہو سکتا ہے دونوں کی رائے مختلف ہو, لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ خان صاحب کے لیے جدوجہد کرنی ہے, عوام کو گراؤنڈ پہ لے کے آنا ہے. اور یہ جو فاشسٹ حکومت, جعلی فارم 47 والی حکومت, یہ آئینی ترامیم کر کے عوام کو جکڑنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرنا ہے. اس کے لیے طریقہ کار اور لائحہ عمل پہ اختلافات ہو سکتے ہیں حماد اظہر اور علی میر گنڈا پور کے, باقی نظریے میں دونوں کے ایک ہی ہے, مقصد ایک ہی ہے. اچھا, پارٹی کو 31 سال دیے ہیں اپنے, 31 ایئر ایک بہت لمبا عرصہ ہے, اور اس میں آپ کو ایک دفعہ بھی منسٹری یا کوئی ایسا عہدہ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ آپ نے تو بہت جدوجہد کی ہے خان صاحب کے ساتھ.
हमारी जिदोजहद जो है वो अपने लिए नहीं थी, अवाम के लिए थे। जब हम मेरा नज़रिया तो ये था कि जब पूरे पाकिस्तान की अवाम का भला होगा, मैं भी उस अवाम में शामिल होऊंगा और उस तरह ही फ़ायदा मुझे वो पहुंचेगा। और जितना मेरे कभी ओहदों के लिए या वजारतों के लिए मेरी दौड़ कभी भी नहीं रही है। अच्छा, 9 मई का ऐसे वाकया हुआ है जो कि बड़ा अफसोसनाक वाकया था, उसमें आपको पीटीआई ने कितना सपोर्ट किया? 9 मई के वाक़े में वाकई बहुत अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें अभी तक हक़ाइक़ सामने नहीं आए। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तब तक हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे। बहरहाल उसमें इन्होंने हमें मुलव्वज़ किया, नामज़द किया, बल्कि FIR के 2-2.5 महीने बाद इन्होंने हम 500-600 वर्करों को डिस्ट्रिक्ट कहीं से ढूंढ के नामज़द किया। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह PTI के जो वकला विंग था उसने हमें बहुत सपोर्ट किया। स्पेशली मेरा भाई मोहम्मद इरफान अलवी, उसने डे 1 से लेके एंड तक बहुत सपोर्ट किया। पहले हमारी इंटरन ज़मानतें करवाई, उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा। फिर उन्होंने अच्छी वहाँ पे जज के सामने वकला के साथ डिबेट की और हमारी ज़मानतें अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्म हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक पॉपुलर पार्टी तो है पीटीआई, हम मानते हैं कि उसका अगर पीटीआई का कोई वर्कर खड़ा होता है तो लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन एक आम कैसे, क्योंकि मिनिस्टर MP आते हैं वो एक जत्थे के साथ आते हैं और मौके से कैसे आपके बंदे कहते हैं फरार हो जाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो मौके पे बेचारे गरीब होते हैं उनका क्या बनता है? उनको कौन चुराता है? क्या उनके पीछे पैरवी करती पार्टी या नहीं करती? जी बिल्कुल, जितने भी हमारे इस्लामाबाद लास्ट 2 जलसों में गिरफ्तार वर्कर हुए हैं, पार्टी वकला विंग उनके पीछे लगे रहे हैं और डे 1 से लेके एंड तक। और बल्कि ये 5 तारीख को लाहौर में भी जितने वर्कर गिरफ्तार हुए थे उन सबको भी कल सबकी ज़मानतें हुई हैं। और पार्टी ने वर्कर को बिल्कुल भी लावारिस नहीं छोड़ा हुआ है, पार्टी बैक पे है। इसीलिए वर्कर हमारा जो वो बिल्कुल गर्म जोश है और वर्कर बाहर निकल रहा है और वर्कर्स की ख्वाहिश है। वर्कर तो हमारा कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन खान साहब का आर्डर है, ये मुल्क हमारा है, फौज हमारी है, ये वतन हमारा है। हमने इंतशार की, तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराओ की सियासत बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा है कि इंतशार नहीं फैलाना और खान साहब का ये विजन भी है। पॉपुलर पार्टी होने के साथ साथ एक आम वर्कर, क्योंकि आप एक सपोर्टर है, मैं आपको बार बार इसलिए सपोर्टर कह रही हूँ कि मैं आपको पूछना चाह रही हूँ कि आपके अंदर क्या बीती जब, क्योंकि एक पॉपुलर के साथ होने के साथ एक और भी चीज़ है, हुकूमत का दबाव भी है, आपको इजाज़त नहीं मिलती जलसों का। आपकी फैमिली जब आप खुदा न खास्ता गिरफ्तार हो जाते हैं या भाग रहे हो, दौड़ कर रहे होते हैं, तो क्या बनता है? एक आम अगर PTI बनता है, इतनी मुश्किलात का क्यों सामना करना पड़ता है उसको? इसलिए आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी डिक्टेटर के दौर में भी इतना जुल्म नहीं किया गया जितना ये फाशिस्ट हुकूमत कर रही है वर्कर्स के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे बच्चों ख़वातीन के ख़िलाफ़। अगर एक वर्कर या एक पार्टी का सपोर्टर है या एक पार्टी का उम्मीदवार ओहदेदार है, अगर आपने उसको गिरफ़्तार करना है, आप उसको ढूंढें, उसको गिरफ़्तार करने, लेकिन आप उनके बीवी बच्चों को तंग करते हैं, मारते हैं, उनके घरों पर लूट मार करके चले जाते हैं। और पार्टी वर्कर्स ने ये 2 साल में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और इंशाल्लाह जैसे ही खान साहब बाहर आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि खान साहब सबसे पहले अपने वर्कर्स को अप्रिशिएट करेंगे और उनके अजाले के लिए जो भी खान साहब से हो सका वो इंशाल्लाह इक़दामात उठाएंगे। जब खान साहब, हमने देखा कि खान साहब जब लाहौर में थे तो आप वहाँ भी बड़ी हाजिरियाँ देते थे और वहाँ मौजूद हुआ करते थे, तो अब जब कि आप उनके साथ रहे और काफ़ी लोग आपको जानते भी हैं, तो आपके अभी भी हुकूमत आपको तंग करती है? इनके पुलिस वाले आते हैं और क्या कैफियत होती है घर वालों की? आप तो इन सब सिचुएशन से निकले हैं, हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि हमने किन किन चीज़ों को फेस किया। बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, सिर्फ आपकी अपनी फैमिली नहीं, आपके इर्द गिर्द के जो रिश्तेदार हैं उनको भी तंग किया जा रहा है। और हमारी ज़मानतें कन्फर्म होने के बावजूद पुलिस अभी तक जैसे ही कहीं भी एहतिजाज का ऐलान होता है पुलिस हमारे घरों पे रेड करती है। और ये जो 5 तारीख का लाहौर का जलसा एहतिजाज था, इससे 3 दिन पहले उन्होंने काफ़ी वर्करों को गिरफ्तार किया, उसमें मेरी भी गिरफ्तारी हुई और मैं 3 दिन हवालात में बंद रहा हूँ। 3 दिन अब बंद रहे, और फैमिली की जो सिचुएशन थी, फैमिली बस फिर फैमिली के साथ फिर वो दोस्त पार्टी के लोग राब्ता तो कर लेते हैं, उनको हौसला तसल्ली दे देते हैं, लेकिन ये कि फैमिली बहुत डिस्टर्ब होती है, बहुत परेशान होती है। जब ये 9 मई का वाक़या हुआ है, मई में, तो जून 1
वीक में मेरी बेटी के फर्स्ट ईयर के पेपर थे, हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, इधर उधर घूमते फिरते रहे, तो उसका जो वो एग्ज़ाम था वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। उसका हमेशा से A+ ग्रेड होता था, लेकिन वो फर्स्ट ईयर में उसकी सिर्फ A ग्रेड ही ले सकी, A+ से थोड़ी पोजीशन उसकी कमज़ोर आई सिर्फ। इसका ये जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो ये कि बच्चों की तालीम हमारों की बहुत डिस्टर्ब हुई है। अभी ख्याल नहीं आया कि इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं, पार्टी को छोड़ ही दूं, कि क्या ये अजाब भी है कि पुलिस भी करवा रही है, कारोबार भी नुकसान पहुंच रहा है, बच्चों की भी स्टडी खराब, वाइफ पे भी जोर है, फैमिली पे भी जोर, आप पे भी जोर, आप भी हवालात में, दिमाग में नहीं आता कि यार पार्टी छोड़ के बस अब बिजनेस करते हैं जो करके। पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं, क्यों, हम तो पार्टी के लिए नहीं खड़े, हम तो इस मुल्क अवाम की आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं। अवाम के जो असल हकूक़ हैं, जो अशराफिया को हकूक़ हासिल हैं, वही आम अवाम को होने चाहिए। हम तो सिर्फ उसके लिए खड़े हैं जो हमारे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जो हमारे नबी पाक की हदीसें हैं, उस वजह से हम हक और सच के साथ खड़े हैं। अगर कोई आपको ऑफर करवाए कि आप पार्टी छोड़ दें, हमारे पास आ जाएं आप, क्योंकि आपकी वोटिंग ज़्यादा है और ये आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो आप चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप खान साहब को नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। हमें जब हमें इन्होंने 9 मई के मुकदमे में नामजद किया था, हमें इन्होंने ऑफर दी थी कि आप IPP ज्वाइन कर लेंगे, आपका केस भी खत्म हो जाएगा, आपको ओहदा भी मिलेगा, आपको फंड भी मिलेंगे, लेकिन हमने कहा था कि हम जेल जाना कबूल है लेकिन पार्टी नहीं बदलेंगे। क्या लगता है खान साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमारा पूरी उम्मीद है और हम पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये 25 अक्टूबर के बाद कोई बेहतरी आएगी। सुनने में तो ये आ रहा है कि इस साल तो मुश्किल है कि खान साहब बाहर आए। वो आईनी तरमीम अगर अवाम ने प्रेशर से रोक ली तो इंशाल्लाह खान साहब उम्मीद है कि इसी साल बाहर आ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और भी है, वो ये सवाल है कि आईनी तरमीम जो कि बहुत सारा इशू हुआ है आजकल, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कल बिलावर से भी मिले हैं, ठीक है, और आपको क्या लगता है कि मौलाना जो हैं वो कहाँ जाएंगे, इमरान खान के हक में या वही PDM की हुकूमत के पास? मौलाना साहब इस दफ़ा हक और सच के साथ जाएंगे, वो ना इमरान खान के साथ जाएंगे, वो अवाम के साथ जाएंगे। और ये जो आईनी तरमीम हुकूमत पेश कर रही है ये बिल्कुल अवाम के लिए ही नहीं है। अगर अवाम के लिए होती तो ये पहले दिन मुसवदा असम्बली में हर जमात के पास आ चुका होता। इसको इसीलिए छुपाया गया था कि इसमें अवाम के लिए कुछ भी नहीं। अगर अवाम के लिए इन्होंने तरमीम करनी है तो फिर इनको सबसे पहले ये करना चाहिए, किसी जज, जर्नैल या सियासतदान मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी जायदाद नहीं खरीद सकता। अवाम के लिए तरमीम करनी है तो जो 36 अरब डॉलर के दुबई में जायदाद हैं उनको बेचकर पाकिस्तान लाया जाए, ये तरमीम करें अवाम के लिए। जो IPPs ने लूट मार मचाई हुई है उनके पुराने मुआहदे कैंसिल करके नए मुआहदे करके अवाम को रिलीफ दी जाए, इस पे तरमीम करें, फिर पूरी अवाम। आपने ये कहा है कि जो आईनी तरमीम है उसमें जो है मौलाना साहब खान के हक में जाएंगे बकौल आपके, लेकिन बिलावर साहब के साथ वो जैसे खड़े हुए हैं उसमें लगता नहीं है कि वो खान साहब के हक में जाएगा। नहीं, अब जो बिलावल साहब का मुसवदा था वो पीछे हो गया, जो PTI और मौलाना ने मिलके बनाया मुसवदा वो आगे चल रहा है, इसलिए मौलाना ने अपने साथ बिलावल को खड़ा किया है। मौलाना साहब बिलावल के साथ खड़े नहीं हुए। मौलाना साहब अभी बिलावर के साथ खड़े नहीं हुए, आपको यही लग रहा है? बिलावल को खड़ा किया है मौलाना साहब ने अपने साथ। जी नाज़रीन, जैसे आपने सुना आसिफ शकूर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि आईनी तरमीम जो है वो इमरान खान के हक में होगी। ये तो वक्त बताएगा कि मौलाना किसके हक में आईनी तरमीम का फैसला सुनाते हैं, चाहे वो अभी कुछ नहीं कह सकते कि वो बिलावर के हक में जाएंगे या इमरान खान के हक में, और अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान कब बाहर आएंगे, लेकिन PTI का कहना है कि अगले हफ्ते या कुछ अगले महीने तक इमरान खान अवाम में मौजूद होंगे। ये भी वक्त बताएगा कि इमरान खान कब बाहर आते हैं। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।